Okay, this is what we'll do about the fundamentals of it, how corrosion takes place, and what are the methods of control on board the ship. और क्वेश्चंस जैसे जैसे इसमें आते रहेंगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे. So this is what corrosion is. The disintegration of an engineered material into its constituent atoms. Why? Due to the change chemical reactions with its surroundings. In other words, disintegration of an engineered material. Your steel, your cast iron, your mild steel, they are all engineered materials. Right? Iron ore, it's an ore, mixture of iron, ore, other things, and it is then purified and engineered to make different types of material. ठीक है, steel, blue steel, depends on how much carbon content is there. Normal cast iron, mild steel, वो सब engineered material है. And corrosion is the disintegration of this engineered material into its constituent atoms. And this happens due to the chemical reaction with the surroundings. Most commonly हम इसको क्या बोलते हैं? Rust बोलते हैं. That's the most common term used for it, rust. But it means an electrochemical oxidation. Electrochemical oxidation of metals in reaction with an oxidant. तो आपको जैसे फायर ट्रायंगल होता है ना, you need heat, a source of heat, you need a material, and you need oxygen. Similarly, here also, you have a triangle, you need a metal, you need something, oxygen, water, some things, and you need what do you call वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मेटल हो गया. ये तीन चीज़ों होनी ज़रूरी है, तब जाकर के आपका ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है. रिमूव वन ऑफ देम, देयर वोंट बी एनी corrosion. Okay, so with an oxide such as oxygen, formation of the oxide of iron, commonly known as rust, right, due to oxidation of the iron atoms in a solid solution. That is the very well known example of electrochemical oxidation. Many structural alloys, आपने देखा होगा शिप में, घर में, जहाँ भी आपके रेलिंग्स वेलिंग्स हैं लोहे की, they corrode. Structural alloys हैं, they simply corrode due to exposure to moisture in the air. And अगर वहाँ पर विंड चल रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, it will be strongly affected. आपका जो corrosion है वो और ज़्यादा vigorous हो जाएगा, और ज़्यादा जल्दी होने लगेगा corrosion. Corrosion can be concentrated locally, सिर्फ एक ही जगह में हो सकता है, और it may spread over wide area, right? वहाँ पर what do you call pit बन जाएगा, crack हो जाएगा, eventually leading to a crack. पहले pit बनेगा, eventually leading in a crack, and it will over a wider area हो सकता है, corroding the entire surface uniformly. Ships में आपने देखा होगा pitting हो जाती है, large amount of rust spots at various places. हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये आता है, what is corrosion? एक वो हो गया, and what is the corrosion cell? So उसका आंसर ये है, what is a corrosion cell? Now, when a metal surface is exposed to an aqueous electrolyte, it becomes a site for oxidation that produces the electrons in the metal. That is the anodic reaction, and also a site for reduction, cathodic reaction, that consumes the electrons produced by the anodic reaction. और ये सब मिलकर के एक corrosion cell बन जाता है. Simply like your lead acid battery होती है. For example, many more are there. दो plates होती हैं, या so many plates are there, depends how many cells are there. दो प्लेट तो होती हैं, एंड दोनों की जो पोटेंसी होती है वो अलग अलग होती है. दे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स. One acts as an anode, the other acts as a cathode. One produces the electrons, the other consumes it. Particularly जब दोनों को एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल रखा है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं corrosion cell. So here we have
the red one and the blue one. एक anode है आपका, एक cathode है. Both of them are dipped into in an electrolyte. Electrons flow from the anode towards the cathode. अब ये कौन सा अनोड होगा, रेड वाला अनोड होगा या ब्लू वाला अनोड होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे अनोड रेड वाला है. एंड corrosion takes place at the anode. Electrons are produced here. Cathode उन electrons को consume करता है, and then together they form a corrosion cell. This is the basic corrosion cell, जैसे आपके normal lead acid batteries में होता है. But there is an electrolyte that has to be. So see this image here, anode, cathode, how the electrons are produced and consumed by the cathode. Corrosion कहाँ हो रहा है? अनोड में हो रहा है. कैथोड में corrosion नहीं हो रहा है. वहां पे हो भी सकता है, बट होगा तो बहुत कम होगा, या वहां पे it may even stop. Corrosion will always take place at the anode. ठीक है. सो इसको हमें स्टॉप करना है. ये जो यहाँ पे अनोड में जो corrosion हो रहा है, इसको स्टॉप करना है. That is your hull. Okay. So anodic reaction dissolves the metal and forms insoluble compounds of that particular metal, which we usually call rust. Insoluble compound बन जाते हैं. In other words, it is reduced to dust again. It's a disintegration जो हमने शुरू में पढ़ा था, disintegration of an engineered material. So जो metal है वो dissolve हो जाता है and forms insoluble compounds of metal. Usually an oxide, which we call rust. And rust क्या है? मिट्टी है एक तरह से. Whereas several cathodic reactions are possible. Typical ones are reduction of oxygen gas. Enclosed spaces में जो हमारा oxygen gas का reduction हो जाता है ना, वहां पे those are the cathodic reactions. For corrosion to proceed, तीन चीजें होनी जरूरी है. There has to be an anode, cathode and an electrolyte. तीनों में से एक को हटा दीजिए आप, तो there will not be corrosion. So you need an anode, you need a cathode, and you need an. So यहाँ पे air है, steel moisture का है. Remove air, no corrosion. Remove moisture, no corrosion. Now this is just study this chart. इसमें you are seeing a lot of metals like magnesium, या उसके alloy zinc हो गया, aluminum. Now the ones which you see right from the center, जैसे brasses है, brass से आप नीचे देखोगे yellow है and it keeps getting darker. Blue से जो ऊपर है, उसके brass के ऊपर जो blue है, it keeps getting darker. Now this is the susceptibility of various metals to corrosion. For example, magnesium and its alloys, they are most susceptible to corrosion. उसके बाद zinc आ जाता है. Then aluminum, mild steel, cast iron, brasses, copper, stainless steel, silver, gold, platinum. So platinum is least susceptible to corrosion. Magnesium is most susceptible to corrosion. हमारे जहाज में जो anodes लगाते हैं हल में, they are made of either zinc or aluminum. And हमारा जो हल होता है वो कास्ट आयरन या कुछ चीजें होंगी उसमें, और माइल्ड स्टील का होता है. ब्रास भी होते हैं. ब्रास के हमारे वाल्व्स होते हैं, जो सीचेस होते हैं, जो वाल्व्स होते हैं, वहां पे they are made of brass. So now what happens is, the left hand side में देखो image की, less noble means more susceptible to corrosion attack, lower number on galvanic scale, and below you will see on the left hand side more noble, जो yellow वाले हैं, we call them ignoble. That means they are
less susceptible to corrosion attack. Galvanic scale में उनका नंबर हाई होता है. So if I use magnesium and zinc, उसको मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट में डाला, then magnesium will become the anode, zinc will become the cathode. Electrons will flow from the magnesium towards zinc. Corrosion कहाँ होगा? Anode में. That means magnesium will be corroded, will be wasted. क्या हो गया? Connection. Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and you can see the image also, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So magnesium or zinc में से magnesium will get corroded, zinc will be protected. If I use zinc and aluminum, zinc is more susceptible to corrosion than aluminum. अगर उन दोनों को उसमें immerse करता हूँ किसी electrolyte में, zinc will become the anode and aluminum will become the cathode. तो magnesium और zinc में zinc is higher in the galvanic scale, so वो corrode नहीं होगा. Zinc और aluminum में aluminum is higher in the galvanic scale, so that will be protected. So this is what हमारा ship किसका बनता है? Mild steel का, cast iron mild steel ऐसे. So हम लोग कौन से anodes यूज करते हैं? Usually zinc के या aluminum के. So aluminum के जो anodes हम लोग लगाते हैं, they get destroyed, they get consumed, and हमारा जो hull है mild steel वो protected हो जाता है. Similarly galvanic scale में ये ऐसे आते हैं. So just keep this image in mind. Now on the ship there are two types of corrosion. One is general corrosion, uniform attack, and the other is localized stress. है इसमें बहुत टाइप का corrosion होता है. इसमें आपका galvanic, crevice, pitting, intergranular de-alloying, erosion corrosion, stress corrosion, वो इसमें आते हैं. More or less the same, कुछ खास फर्क नहीं है. Procedure is the same. कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहीं पे आयन कंटेंस ज़्यादा है, कहीं पे ऑक्सीजन कम है, या कहीं पे आयन कंसंट्रेशन कम है. यही फर्क है, बट है एक्चुअली सब more or less same. इसका corrosion देखते हैं पहले. Now, differences in electrical potential occur on the surface of the piece of metal due to differences in chemical composition. So let's say एक एग्जांपल के तौर पे हमारा जो शिप का डेक है, डेक में हमारी प्लेट्स लगी होती है, माइल्ड स्टील की प्लेट्स या कास्ट आयरन व्हाटएवर. ठीक है, एक कोई भी एक स्टील प्लेट ले लीजिए आप. अब उस स्टील प्लेट को अगर आप देखोगे तो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सब जगह सेम नहीं होगा. कहीं पे कार्बन कंटेंट कम होगा, कहीं पे कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, कहीं पे differences will be there. Let's say for example you are building a house. और जब हाउस बिल्ड करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं. उसमें हम पानी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, सैंड डालते हैं, अदर थिंग्स, एंड वी देन मिक्स इट अप. इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट पॉसिबल कि 100% परफेक्ट मिक्सचर मिला हो. तो आपने वो सीमेंट का जो मोटर है वो आपने अपनी दीवारों में लगाया, दीवार में लगाया, सब सूख गया, सब कुछ बढ़िया. अब हो सकता है कि कहीं पर सीमेंट ज़्यादा लगा हो, कहीं पर कम लगा हो. जहाँ पर कम लगा है हो सकता है वहाँ से पील ऑफ करने लगा हो, ओवर पीरियड टाइम वहाँ से पील ऑफ करने लगेगा. बाकी जगह सब हार्ड है, कहीं पर कम होता है. You understand what I'm trying to get to? कि सब जगह बराबर सीमेंट नहीं पहुँचेगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा. सो ये जो स्टील होती है हमारी, ये जब प्रोसेस करते हैं इसको,
There are small differences in the chemical composition. और ये जो small differences होते हैं अलग अलग जगह में, these create small, वहां पे electrical difference हो जाता है, potential difference हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा. So these differences set up small corrosion cell, each with an anode or cathode. Now corrosion will take place until the entire metal is consumed. वहां पे छेद हो जाएगा, या कभी कभी क्या होता है, corrosion हो रहा है, उसके ऊपर rust बन जाता है, thick rust बन जाता है, which then acts like a barrier and it will prevent the metal piece coming in contact with the electrolyte. तो वहां पर corrosion stop हो जाएगा, बट रस्ट उसके ऊपर फॉर्म हो गया, या थिन फिल्म बन गई है, which will, this thin film will act as a barrier to the electrolyte, और वहां पे stop हो जाएगा. Or it may continue until the entire metal is consumed, और वहां पर छेद हो जाएगा, छेद होकर के और धीरे धीरे करके क्रैक बन जाएगा. I'll show you some examples as we go ahead. So this is what it is. Your generalized differences in electrical potential occur on the surface of the piece of metal due to small differences in chemical composition. These differences set up small corrosion cells, each with an anode and a cathode. Corrosion will continue until the metal piece is consumed completely, or a thin film of rust is formed over it, which will then act as a barrier to the electrolyte, thereby preventing corrosion. Now this type of corrosion is uniform. Means एक जगह में होगा, दूसरी जगह में स्पॉट्स हो जाएंगे. इवेंचुअली आपने देखी होगी ना, कुछ प्लेट्स ऐसी होती है जो बहुत पिटेड होती है, पिटेड प्लेट्स, वहां पर इस टाइप का आपको मिलेगा. पिटिंग करोजन मैंने आपको आगे भी बताया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड पिटिंग करोजन, सिमिलर टू दैट. So, and how can it can be restricted? By applying paint, coatings हो गई, sacrificial anodes हो गया, ICCP हो गया, or using a metal which is more corrosion resistant. ठीक है. Obviously on the ship we don't use brasses, except maybe in the sea chest, in the valves, जो ballast tank में जो valves होते हैं, वहाँ पे हम लोग brass के use करते हैं. जो हमारा 4B tank का valve होता है, वो भी brass का होता है. So because brass is more resistant to corrosion, तो हमने वो metal को ले लिया. Or by applying paint, coatings, sacrificial, or ICCP. So this is your general corrosion. Next what we have is localized corrosion. Or localized corrosion can be one of these types. The first one is galvanic. And this is the most common type of corrosion that is found on board the ship. Galvanic. मतलब when two metal pieces are immersed in an electrolyte. वैसे ही हमारा ship है. Sea water is a very good electrolyte. And there is our ship which is what you call immersed in that. हमारा प्रोपेलर देखो आप ब्रॉन्ज का होता है. हमारा हल जो है वो माइल स्टील का है, रडर उसके पास है. देन वी हैव सी चेस्ट, सी वाल्व्स, वो अलग मटेरियल के बने हैं. सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ corrosion there. crevice means कहीं पे crevice बन गई है, गैप बन गई है, और उस गैप में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स फंस गए. जैसे सी वाटर है, एक कहीं पे कोना है, वहां पे सी वाटर स्प्रे हो रहा था, वो उसमें फंस गया. अब वो पानी वहीं रह गया. इवेंचुअली इट विल इवेपोरेट ग्रेजुअली. आयरन कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती रहेगी उस पानी में, तो वहां से करोजन स्टार्ट हो जाएगा. पिटिंग, फिर इंटरग्रैन्युलर है, डी एलॉइंग, इरोजन करोजन, and stress corrosion. So let's see this first one.
galvanic. Now this corrosion occurs when two dissimilar metals are electrically coupled in the presence of an electrolyte such as seawater. So हमारा hull is a perfect example. Current will flow through the electrolyte from the anodic material to the cathodic material. ये हमेशा याद रखिए, current will always flow from a less noble material, that is a metal which is more susceptible to corrosion, to the one which is less susceptible to corrosion. So magnesium और aluminium में रखेंगे हम, तो magnesium is more susceptible to corrosion. Current will flow from magnesium towards aluminium. Aluminium and mild steel रखेंगे, then current will flow from aluminium towards mild steel. Always from the lower one towards the high. That is always from an anode towards the cathode. Okay, so current will flow through the electrolyte from the anodic material to the cathodic material. Usually at the corrosion at the anode is accelerated and that of the cathode is decelerated. अगर वहाँ corrosion हो रहा है cathode में तो वो कम हो जाएगा और it may even stop totally. So जब हम anodes लगाते हैं hull में, and these anodes are made of aluminum or magnesium or zinc. Usually zinc के होंगे या aluminum के होते हैं, magnesium के इतना यूज नहीं होता है, बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे. So या current flow बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So what we use normally is something which is one step lower than your hull. Hull हमारा mild steel का है तो हमसे एक lower जो है aluminum है, तो aluminum का node ले लिया, zinc के ले लिया. You know, this is all calculated. ऐसे नहीं है कि कहीं भी लगा दो आप, anodes कहीं भी लगा दो, उठा यहाँ लगा दे इधर, ऐसा नहीं होता है. It is calculated कि कितना current हमें चाहिए. ज़्यादा करंट चाहिए तो माइल्ड स्टील और अनोड का जो डिफरेंस होगा, वी माइट यूज मैग्नीशियम एंड अनोड्स इफ यू वांट हायर करंट टू फ्लो. अगर थोड़ा कम है डिपेंडिंग ऑन, वी माइट यूज मैग्नीशियम, सॉरी जिंक एंड हल आपका किसका है, माइल्ड स्टील का है. वी मे ऑल्सो यूज एल्युमिनियम के बाद माइल्ड स्टील आता है. So it depends, it is all calculated कि how much area you want to protect. मतलब इतने बड़े एरिया को मैंने प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए कितने अनोड्स की जरूरत पड़ेगी. एंड आई वांट द प्रोटेक्शन फॉर 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. वो भी होता है. How long you want the anodes to last, the period. So how much area you're covering up and for how long you want to give the cover. Okay, so usually the corrosion at the anode takes place, वो accelerate हो जाता है, as we saw in that image. Anode में corrosion हो रहा है, cathode में कुछ भी नहीं हो रहा है, and cathode में it may be decelerated or even it may totally stop. So this is your कौन सा corrosion, localized corrosion का पहला part, which is galvanic, जो जहाज में सबसे कॉमन है. Next is your localized corrosion. Now this localized corrosion selectively attacks areas of metals where there is a surface scratch, where there is an emerging dislocation, a compositional heterogeneity. Compositional heterogeneity means differences in the chemical composition, जो हमने शुरू में किया था, right? Emerging dislocation, कहीं पे आपने वेल्डिंग शेल्डिंग कर रखी, वहां पे अनइवन हो गया है, नट बोल्ट टाइट कर रखे हैं, वहां पे भी emerging dislocation हो जाती है. या surface scratch, आपकी कार है, कार में क्या हो गया, एक स्क्रैच लग जाता है, and the underlying metal is exposed, जो मेन मेटल होता है वो एक्सपोज हो गया, राइट? तब ये आपका लोकलाइज corrosion pitting होता है.
The area which has broken down, जैसे scratch है, scratch has broken down, underlying metal is shown, वो दिख रहा है आपको. The area which is broken down becomes an anode, and the rest of the area, passive area, वो कैथोड बन जाता है. और वहां पे अगर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, करोशन रिजल्ट हो जाता है. सो इमेजिन, आपने देखा हो अपनी गाड़ियों में दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे के नीचे कहीं कहीं पे पेंट पील ऑफ हो जाता है, अंडरलाइंग जो मेटल है तो वो एक्सपोज हो जाता है, और वहां पर रस्ट शुरू हो जाता है. वाई? बिकॉज दैट एरिया हैज ब्रोकन डाउन एंड दैट बिकम्स द कैथोड. और वो सॉरी, दैट बिकम्स द एनोड. और वो एनोड बन जाता है, देन रेस्ट ऑफ द पैसिव एरिया इज ऑल प्रोटेक्टेड. पेंट है, वो तो पूरा पेंट लगा रखा. So वो एनोड बन जाता है, rest of the passive area becomes a cathode and corrosion takes place. अब it can be aggravated. अगर वाइब्रेशन हो रहा है, एसिडिक है, pH वैल्यू उसकी बहुत एसिडिक है, पानी, ऑक्सीजन कंटेंट हाई है, पानी की रफ्तार बहुत तेज है, इफ यू आर होजिंग डाउन टू, तो उससे और भी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा corrosion. So this is pitting. ये आपको एग्जाम्पल है. One of the most insidious means unpredictable form of corrosion. Weight loss बहुत कम होगा, but strength बहुत खत्म हो जाती है, grave consequences के साथ. Weight loss will not be much, but the strength of the piece of metal is greatly affected, और उसके consequences भी अच्छे. So this is your pitting. और देखा होगा आपने डेस्क में, जहां पे अनोट, जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन उसका जो है वो खराब है, उस टाइप के. So this is a very badly engineered plate. Next is crevice. Crevices are formed by the geometry of the components. मतलब वो, जैसे हम लोग बैलेस्ट पाइप है, बैलेस्ट पाइप को हम लोग एक उसमें लेके जाते हैं ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में उसके ऊपर हम फिर उसमें पाइप लगा दिया, तो वहां पर आपके काफी गैप्स बन जाते हैं, क्रेविस बन जाती है. और उस क्रेविस में क्या होता है, आपका पानी फंस गया, राइट. लाइक मैं आई एम नॉट यूजिंग माई स्क्रीन, चलिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है. So you can see this sort of a crevice here. यहाँ पे आपका एक crevice बन रहा है. यहाँ पे क्या होता है, पानी वानी फंस जाता है. कहीं पे भी नट बोल्ट्स देखिए आप इस वाली इमेज में. सो वहां पे वाटर गेट्स ट्रैप्ड, इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं, आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, या ऑक्सीजन कंटेंट्स कम हो जाती है, तो वो अनोड बन जाता है. ठीक है, ये आपका एग्जांपल है. द क्रेविस सो फॉर्म्ड causes an electrolyte cell to be formed because of the entrapped electrolytes. Sea water, या सी वाटर उड़ गया, evaporate हो गया, वहां पर सॉल्ट चले गए. So the crevice can either be a cathode or it can be an anode depending on the condition of the oxygen contents or ion. So anode भी हो सकता है, cathode भी हो सकता है. ऑक्सीजन कंटेंट हाई है तो कैथोड हो जाएगा, ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो एनोड हो जाएगा. वैसे ही आयंस का है. सो एरिया विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स एनोड, एंड द अदर, जहां पे ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, दैट बिकम्स अ कैथोड. या जहां पे आयन कंसंट्रेशन इन द क्रेविस इंक्रीजेस, तो वो कैथोड बन जाता है, कम है तो वो एनोड बन जाता है. सो जब एनोड बन गया, कैथोड बन गया, साइकिल बन गई, करोशन स्टार्ट हो जाता है. ऑक्सीजन स्टार्वेशन in an electrolyte at the bottom of a sharp V section
will set up an anodic site in the metal, and then it will start corroding rapidly. तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वो एनोड बन जाएगा. Then the other area जहाँ पे आपका ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है. एक मिनट सर. लाइट चलेगी. Okay. Next is intergranular corrosion. Now, किसी भी अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर मेटल का, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, it is made up of alloys. It is made up of grains. जैसे आपके घर में लकड़ी है, लकड़ी को हम पॉलिश करते हैं, तो हम बोलते हैं भाई बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव वुड है, शीशम का है या टीक है, उसको अच्छे से पॉलिश करो तो उसके अंदर उसके ग्रेन्स दिखाई देते हैं, उसकी रेशे दिखाई देती है. दैट इज कॉल्ड द ग्रेन्स. सो वैसे किसी मेटल को अगर आप देखोगे अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो you will see that it is made up of grains separated by grain boundaries. और intergranular means grains के बीच का, जो बहुत सारे grains होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं intergranular. So उन दोनों के बीच में जो corrosion होता है, it is a localized attack along the grain boundaries. जो grain है उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन adjacent to the grain या grain की जो boundaries हैं वहां पर corrosion होता है. The grain आपका intact रहता है. So as you can see in this image, you have ये जो yellow जो आपको दिख रहा है या बीच में जो brown दिख रहा है, ऐसा दिखता है आपको माइक्रोस्ट्रक्चर अंडर दी माइक्रोस्कोप. किसी भी मेटल को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे एनलार्ज करके, I don't know how many x, but if you enlarge it, ऐसा दिखता है. And this is जो grains है, they are unaffected, but उनकी जो boundaries है adjacent to the grains, वहाँ पर corrosion start हो जाता है. This is called intergranular corrosion. Very common to cast iron, grey cast iron, जहाँ पे iron तो है वो corrode हो जाता है और graphite का residue छोड़ जाता है. So this is your intergranular. Guys, this thing is clear? You can hear anything so far that you wish to ask? सर जो इंट्राग्रैनुअल का आपने एग्जांपल दिया, सो पीछे पाइप का फोटो है, तो पाइप में मेंशन हुआ कि कहाँ दिखेगा ऑन बोर्ड शिप? ये नहीं, नॉट नेसेसरी ये आपको ऑन बोर्ड दिखेगा. अगर आपके पास ऑन बोर्ड में, यू नो, ऑन द शिप वेरी स्पेसिफिक मेटल्स आर यूज्ड, बिकॉज ऑन द शिप लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इट इज कॉमन टू ग्रे कास्ट आयरन. जहाज में हम लोग माइल स्टील यूज करते हैं, और माइल्स हैव यू बीन ऑन शिप जहाँ पिटिंग देखी है आपने? इस टाइप की जो पिटिंग मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी, डेस्क पर कहीं पे देखा है आपने? चाइनीज बिल्ड शिप्स में बहुत मिलेगा. मोस्टली सर ब्लास्ट टैंक्स में देखा जाके. बैलेस्ट टैंक्स में? हाँ जी सर. नहीं, इतना नहीं होता है बैलेस्ट टैंक्स पे, अनलेस यू नो इनिशियली जो इन शिप्स बिल्ट इन इंडिया होती थी ना, जो ड्यूरिंग माय डेज, तो प्रॉब्ली वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टील वाज नॉट सो गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. तब इस टाइप का डेक्स में बहुत दिखता था, राइट? ओल्ड शिप्स में बहुत दिखेगा ये, बट नाउ डेज नो, क्वालिटी बनता है इंडिया में. तो यस, बट चाइनीज बिल्ड शिप्स, यस, वहाँ पे बहुत इस टाइप का दिखेगा आपको, राइट? तो
ये हमारा जो मैं बोल रहा था ब्रैकेट्स लेके जाते हैं, तो हम लोग के जहाज में जनरली माइल्ड स्टील यूज होता है या एल्युमिनियम यूज होगा। बनाने के लिए सारा तुम्हारा माइल्ड स्टील होगा, एंड सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जनरली एल्युमिनियम यूज करते हैं बिकॉज इट्स लाइटर, सो डेड वेट कैपेसिटी बढ़ जाती है, कार्गो कैरिंग कैपेसिटी, इसलिए एल्युमिनियम को यूज किया जाता है। अब उसमें देखो कि एक आपका हल हो गया, डेक्स हो गए विच आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो एल्युमिनियम का हो गया। एल्युमिनियम इज मोर ससेप्टेबल टू करोजन देन माइल्ड स्टील। सर और गैल्वेनिक करोजन का सर आपने बोला था कि हल होता है शिप पे, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ हल, राइट? हाँ, हल का सबसे द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ व्हाट यू कॉल करोजन ऑन बोर्ड द शिप इज गैल्वेनिक, चाहे वो आपका मेन डक हो, चाहे आपका हल का एरिया विच इज ऑलवेज इमर्स्ड, एंड सी वाटर जब भी आप रोलिंग पिचिंग करते हैं तो सी वाटर डेक में आ ही जाता है। और जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है प्लेट का, इट इज नेवर सेम। जैसे लेट्स से इफ आई गिव यू फॉर एग्जांपल आटा होता है और हमारा सूजी होता है। इफ आई गिव यू say 1 kilogram of आटा and say 250 grams of सूजी, and I tell you to mix it, make sure कि अगर मैं 10 ग्राम यहाँ से निकालूं, 10 ग्राम यहाँ से निकालूं, दोनों में सूजी के दाने बराबर होने चाहिए। It is impossible, isn't it? You cannot mix it 100% perfectly. So वैसे ही मेटल्स का भी होता है, तो जब कंपोजिशन होता है तो कभी भी सेम नहीं होता है। आपकी जो मेडिसिन आती है या आपके जो जूसेस आते हैं, उनमें भी अगर आप देखोगे बैच नंबर होता है, मतलब ये इस बैच का बना है, उस पर ये नेक्स्ट बैच में देखोगे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ गया, हो सकता है कुछ ज़्यादा कुछ कम कर दिया। What I'm trying to say, it is never possible to create an even surface. सीमेंट और सैंड को मिला दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब जगह एवरी पिंच ऑफ सैंड सीमेंट मिक्सचर यू पिक अप उस पर इक्वल क्वांटिटीज होगी। यही चीज आपकी उसमें होती है, और यही चीज जो स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं इन केमिकल कॉम्पोजिशन, दे क्रिएट स्मॉल व्हाट यू कॉल डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो एक कैथोड बन जाता है, जहां पर ज्यादा है वो कैथोड बन, जहां पर कम है वो एनोड बन जाता है। और पिटिंग अगर बहुत खराब बनी है, कम बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो पिटिंग ज्यादा हो जाएगी। जैसे ना कि आप जब हल में जो हम अनोड्स लगाते हैं, हम अनोड्स मैग्नीशियम के भी लगा सकते हैं, हमारा माइल्ड स्टील है, उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी इन दोनों के बीच में। एंड जो आपका मैग्नीशियम का जो आपने अनोड लगा रखा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका जिंक का हल, तो आपका माइल्ड स्टील का ही है, आपका जो जिंक है। अब जिंक का जो डिफरेंस है बिटवीन जिंक एंड माइक्रेट, अब वो थोड़ा कम हो गया, वो भी करोड़ होगा, बट लेस देन मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नोड्स, और हमारा हल हो गया माइल्ड स्टील का। तो डिफरेंस उन दोनों के बीच में और भी कम हो गया। डिफरेंस कम हो गया क्या मतलब हो गया कि व्हाट करंट इज फ्लोइंग बिटवीन द हल एंड द एनोड्स, दैट डिफरेंस, दैट करंट व्हिच इज फ्लोइंग बिटवीन द एनोड टुवर्ड्स द हल, उसको हमने प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ करंट हैज टू बी गिवन टू द हल, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। अगर वो कैलकुलेशन जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो सही नहीं होगा तो देन आपके जो अनोड्स हैं वो टोटली खत्म हो जाएंगे। बाय द टाइम 5 साल के लिए आपने लगा रखे हैं, तो वो देखा, पता चला कि करोजन ज़्यादा हो गया था, तो वो कंज्यूम हो गए, करंट बहुत कम फ्लो कर रहा था, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, तो आपने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर आपके वो अनोड्स खत्म हो गए, प्रोटेक्शन इज लॉस्ट। So this is actually calculated.
सो हमारा जो जहाज का जो है दैट इज मेनली गैल्वेनिक, बिकॉज हमारा सारा का सारा चीज माइल्ड स्टील का बनता है, हल्का अंडर वाटर एरिया, डेक्स एंड ऑल दैट, एंड इलेक्ट्रोलाइट सी वाटर हो गया। और जो प्लेट्स हमारी है उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सब जगह सेम है नहीं, सो मोस्ट कॉमन फॉर्म का ये है। ओके, ये तो हो गया। अब आपका जो क्रेविस है, पिटिंग, ये भी वही कारण है, लोकलाइज करोजन है। करोजन का कारण क्या होगा कि एक चीज अरोड बन गई, एक चीज कथोड़ बन गई। आपके गाड़ी का, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, गाड़ी के बोनट में अगर एक स्क्रैच लग जाता है तो ऊपर का पेंट नहीं, अंडरलाइंग मेटल वो एक्सपोज हो गया, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वहां पे धीरे धीरे करोजन चालू हो जाएगा। पहले तो हल्का सा येलोइश दिखाई देगा, फिर वो डार्क होते रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा, इवेंचुअली वहां पे छेद हो जाएगा। है तो वही चीज, अनोड एंड कैथोड, एक अनोड बन गया, दूसरा कैथोड बन गया। ओके, सो पिटिंग हो गया, आपका क्रेविस हो गया, और हमने कर लिया ये इंटरग्रैन्युलर। एनीथिंग ऑन इंटरग्रैन्युलर? ओके, हाँ, सो ये बोल रहे हैं इस टाइप का जो हम लोग के जहाज में, वी विल नॉट बी यूजिंग व्हाट यू कॉल ग्रेफाइट, या हमारा होगा माइल्ड स्टील का हो सकता है। कास्ट आयरन का यूजुअली हम लोग कुछ ऐसा यूज होता नहीं है जहाज में। हमारा जो आयरन एंकर भी बनता है वो भी कास्ट आयरन का ही बनता है, या माइल्ड स्टील का, डिपेंडिंग, बट इट इज कास्ट, इट इज वन कंप्लीट सॉलिड पीस। ओके, एलॉय कितना बज का टाइम हुआ, ये अभी एक और टॉपिक कर सकते हैं, 9:51, चलो एक और ले लेते हैं। Now de-alloying is, when a metal contains more than 15% of zinc, तो तब हम उसको क्या करते हैं, we want one of the metal to be preferentially dissolved. For example, de-alloying occurs when one or more components of an alloy are more susceptible to corrosion than the rest and are preferentially dissolved. Preferentially means we want this to get dissolved in order to protect or remove something. हम चाह रहे हैं कि preferentially dissolve हो जाए. The most important example of de-alloying is the removal of zinc from brass, known as dezincification. Right? ये आपका dezincification भी बोलते हैं उसको। अब जैसे हमारा क्या कहते हैं, सोना होता है 22 karat gold, for example, yeah, 18 karat or whatever. Pure gold, is 24 karat, 999.99 की प्योरिटी होती है उसकी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिलिसिमल फाइननेस, प्योरिटी कितनी है गोल्ड की। अब उसमें हम लोग कोई चांदी मिलाता है, कोई कॉपर मिलाता है, उसको मिला करके थोड़ा सा, बिकॉज प्योर गोल्ड इज लिटिल सॉफ्ट, उसमें अगर डायमंड वायमंड सेटिंग करनी है तो नहीं हो पाती, तो उसको हम लोग हार्ड कर देते हैं। हार्ड कैसे करते हैं? बाय एडिंग either copper or silver or whatever, these kind of things. Now, after a while, when you want to purify that gold, you go to a goldsmith और बोलते भाई ये है, इसको गलाना है मुझे। गलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, 24 कैरेट का बन जाता है। तो उसमें से प्रेफरेंशियली हमने क्या किया है, सिल्वर या कॉपर जो उसमें था वो हमने हटा दिया। सो एक तरह से हमने गोल्ड को फिर से 24 कैरेट का कर दिया। वैसे जहाँ पे भी ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है वो ये करते हैं de-alloying। मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में जो आपके जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे यही करते हैं, और काफ़ी चीज़ें होती है, उसको निकालते हैं, गलाते हैं, ब्रास अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, वो अलग कर लिया, whatever up to them. So it occurs when one or more components of alloy are more susceptible to corrosion than the rest and are preferentially dissolved. Most important de-alloying का just होता है removal of zinc from brass, known as
जिंकिफिकेशन, डीजिंकिफिकेशन। तो ब्रास क्या है? ब्रास एक अलॉय होता है, ओके, उसमें कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, सो इट इज अ अलॉय। ओके, सो हियर ये आपको दिख रहा है, इसमें कॉपर भी दिख रहा है, ये जो ब्राउन ब्राउन चीज आपको दिख रही है उसके ऊपर, ये ब्रास पे दिखता है। ओरिजिनल तो बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल शाइनिंग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस टाइप का हो जाता है। जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है वो रस्ट नहीं है, दैट इज कॉपर, विच रीड हो सकता है थोड़ा सा रस्ट भी हो, बट यूजुअली इट इज कॉपर, क्योंकि अलॉय इज मच स्ट्रॉन्गर देन द मेटल इटसेल्फ। तो उसमें कॉपर रीडिपॉजिट हो जाता है। मेनली हैविंग ब्रासेस विच हैव 15% से ज़्यादा का जिंक होता है। ब्रास gets dissolved in the electrolyte. This is followed by zinc remaining in the solution and copper redepositing. This is the de-alloying process. Okay, चलो यही तक करते हैं। नेक्स्ट वी विल टेक या स्ट्रेस करोशन। ये आपका स्ट्रेस करोशन है, फ्रेटिंग करोशन, ये इरोशन करोशन, ये बाद मिलेंगे। ये आपका फ्रेटिंग करोशन है। वी जस्ट शो द इमेज। ये तब होता है जब जो दो मेटल्स हैं आपस में रगड़ खाते हैं, दे आर यू नो रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, और ऊपर के जो क्रोजन प्रोडक्ट्स है वो खत्म हो जाता है और अंडरलाइन जो मेटल होता है वो एक्सपोज हो जाता है। इंजन रूम पिस्टन। हाँ हाँ, वन यस, पिस्टन लैशिंग रॉड्स होते हैं। अगर लैशिंग रॉड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं बने हैं कंटेनर शिप्स में और आपस में रब कर रहे हैं और वाइब्रेशन है तो और भी ज़्यादा होने लगेगा करोजन। सो जहाँ पे भी इस का रबिंग की वजह से, फ्रेटिंग की, एक दो आपस में रब कर रहे हैं, ये आपका इरोजन करोजन है। पाइप के अंदर से करोजन, बाहर से तो बिल्कुल ठीक रहेगा पाइप, अंदर से आपका करोजन शुरू होता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो बाहर को डेवलप होने लगता है। एंड अगर बैलेस्ट पाइप के अंदर से जो सी वाटर है वो स्पीड से जा रहा है तो आपका करोजन भी बढ़ जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट टाइम लेंगे।